بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی، اس میں آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ امریکہ کے وہ کون سے 12 مطالبات ہیں جو امریکہ نے پاکستان سے کیے ہیں۔ ان میں امریکہ کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ پاکستان افغانستان کی سرحد سے جو باڑ ہے اس کو لگانے کا سلسلہ بند کرے اور راستوں کو کھول دے۔ یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ سوٹ نہیں کرتی بھارت کو بھی، امریکہ کو بھی، اسرائیل کو، افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کو، کسی کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ یہ باڑ یہاں پہ موجود رہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک نیا مطالبہ کیا ہے اور یہ مطالبہ اخبارات میں رپورٹ بھی ہو گیا ہے۔ میں مطالبہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اپنی رائے دیں اس پروگرام کے توسط سے، میسیجز کے ذریعے سے، اور میں سوشل میڈیا پہ بھی اس کا ایک سروے کرواؤں گا اور پھر ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کو امریکہ کا یہ مطالبہ ماننا چاہیے یا نہیں۔ مطالبہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے اور افغان شہریوں کے لیے نئی امریکی مہاجرین پالیسی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ضروری ہوگا کہ پاکستان اپنی سرحدیں افغان مہاجرین کے لیے کھلی رکھے۔ امریکہ کا پاکستان سے افغان مہاجرین کے لیے سرحدیں کھولنے کا مطالبہ، اس کو اب رپورٹ کر دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے علاوہ ترکی سے بھی ایک مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانوں کو امریکہ میں دوبارہ آباد ہونے سے پہلے 14 مہینے تک اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے۔ امریکہ کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ ظاہر ہے لوگ اگر موو کریں گے تو ان کو ایران کے راستے ترکی جانا پڑے گا۔ دیکھیے آپ نقشہ دیکھیں، پہلے میں آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں۔ یہ افغانستان کا نقشہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کے چاروں طرف 6 ملک ہیں۔ ایک چائنا، سرحد بند، چائنا نے فوج پہنچا دی ہے۔ چائنا افغانستان کے اندر سے لوگوں کو اپنے ملک میں نہیں آنے دے گا۔ نمبر 2 تاجکستان، تاجکستان نے بھی اپنے ایریاز بند کیے ہیں، وہ اپنے ملک میں نہیں آنے دیں گے۔ نمبر 3 ازبکستان کی سرحد ملتی ہے، وہ بھی اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے۔ نمبر 4 ترکمانستان کی سرحد ملتی ہے، وہ بھی اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے۔ باقی 2 ملک رہ جاتے ہیں، ایک ایران اور ایک پاکستان۔ ایران محدود طریقے سے کچھ لوگوں کو ماضی میں آنے دیتا رہا، لیکن اب ایران کی پالیسی کچھ حد تک بدلی ہے اور امریکہ کی ایران کے ساتھ بات چیت بھی بند ہے۔ لہذا ان مہاجرین کو اب کہاں بھیجا جائے؟ امریکہ اب ایک جنگ لڑنا چاہتا ہے، فضائی حملے کرنا چاہتا ہے، لیکن ان میں کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہو رہا ہے، عام شہریوں کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس پہ اقوام متحدہ نے خبردار بھی کیا ہے۔ اور افغان فورسز بھی جب فضائی حملہ کرتی ہیں تو عام شہری بہت بڑی تعداد میں مارے جاتے ہیں۔ وہاں سڑکوں پہ اور چوراہوں میں، شاہراہوں کے اوپر عام شہریوں کی لاشیں پڑی۔ طالبان ان کے قابو نہیں آ رہے، فضائی بمباری میں وہ اپنے لوگوں کو مار دیتے ہیں، بعض اوقات عام شہریوں کو مار دیتے ہیں۔ تو ایسے میں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وار زون سے لوگوں کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ لوگ ایران میں تو امریکہ کی بات چیت نہیں ہو رہی، وہ ایسے نہیں جانے دیں گے۔ رہ جاتی ہے ایک آپشن پاکستان کی۔ تو امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اپنی باڑ کو ہٹائے، مختلف جگہوں سے راستے دے اور افغانوں کو بہت بڑی تعداد میں ہجرت کر کے، یعنی ہو سکتا ہے یہ 30-40 لاکھ اور آ جائیں، ان کو ہجرت کر کے پاکستان آنے دے تاکہ وہ پاکستان میں آئیں اور پھر خالی علاقوں میں طالبان کے ساتھ ایک فضائی لڑائی جو ہے وہ لڑی جائے امریکہ کی جانب سے اور افغان حکومت کو سپورٹ کیا جائے بڑے پیمانے پہ، اور افغان فورسز کو تگڑا کر کے ہمیشہ کے لیے طالبان کے مقابلے میں ایک طاقت کھڑی کر دی جائے۔ یہ امریکہ کی خواہش ہے۔ اس خواہش میں ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہم کیا پائیں گے، کیا کھوئیں گے، اس پہ بات کرنے سے پہلے ذرا خبر آپ پوری سن لیں۔ اب امریکہ یہ چاہتا ہے ترکی سے، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہم سرحدیں کھول دیں اور ان کو آنے دیں۔ اب اس میں تعداد بھی نہیں پتہ کہ اس دفعہ کتنے آئیں گے۔ اس دفعہ تو ایک خانہ جنگی بہت بڑی جنگ لگی ہوئی ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں۔ 30 لاکھ افغانی آلریڈی پاکستان کے اندر سیٹلڈ ہیں، وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں۔
5-6 लाख कैंपों में रह रहे हैं, बाकी शहरों में फैले हुए हैं, इनको अभी वापस जाना है। ऊपर से हम 30-40 लाख बंदा और ले लें, उनको हम कहाँ रखेंगे, उनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, ये बड़े सवालात हैं। यही सवाल जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत ने भी उठाया था कि खाना जंगी का दबाव पाकिस्तान पे आएगा। अब वहाँ से जब लोग आएंगे तो उसमें भारत के एजेंट भी होंगे, वहाँ से जब लोग आएंगे तो पाकिस्तान की जो दुश्मन एजेंसियाँ हैं उनके बंदे भी आएंगे, फिर वो धमाके करेंगे बाज़ारों में, फिर वो मारेंगे पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की पुलिस को, APS में जैसे बच्चों को मारा था ऐसे। फिर ये दहशतगर्द पाकिस्तान के हर ज़िले में, हर इलाके में दहशतगर्दी फैलाएंगे। इसी खौफ की वजह से पाकिस्तान ने दुनिया की एक महंगा तरीन मंसूबा उठाया था, बड़ी महंगी एक बाड़ लगाई थी, जो पाकिस्तान उसका बोझ नहीं उठा सकता गरीब मुल्क होने के बावजूद, लेकिन फिर भी हमने ये बाड़ 90% मुकम्मल कर ली है। अब तुर्की से क्या चाहता है अमेरिका? तुर्की से ये चाहता है कि वो ईरान से बात करे और ईरान को कायल करे कि आप एक ज़मीनी रास्ता फराहम करें अफ़गान मुहाजिरीन को। ये वो वाले मुहाजिरीन होंगे जिनको पहुंचना है अमेरिका में, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के वीज़े अप्लाई किए हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका अपने मुल्क में डायरेक्ट नहीं इनको लाना चाहता, वो ये चाहता है कि पहले इनको चेक किया जाए, इनको अच्छी तरह इनकी स्क्रूटनी की जाए, इनको हर लिहाज से देखा जाए कि अगर ये बंदे बिल्कुल ठीक हैं तो अमेरिका में जाएं, वरना हम नहीं आने देंगे अमेरिका में। अपने मुल्क में नहीं आने दे रहे किसी एक भी ख़राब आदमी को। हमें ये कह रहे हैं कि पहले ये वहाँ से दाखिल होंगे अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में, क्योंकि डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से ईरान में तो जा नहीं सकते। उसका एक वजह है, उसकी वजह ये है कि डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से जब ईरान में जाएंगे तो रास्ते में तो सारे तालिबान बैठे हुए हैं, वो सारा तो तालिबान के कंट्रोल में, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये आएंगे पहले पाकिस्तान, और ये लगभग 14,000 लोग हैं, और यहाँ से जाएंगे ईरान तफ्तान बॉर्डर के रास्ते से, वहाँ से ईरान इनको पहुँचाएगा तुर्की, और तुर्की इन 14,000 लोगों को अपने मुल्क में जगह दे रहने के लिए। ये वहाँ पे कुछ महीनों तक या 14 महीने तक रहेंगे, तुर्की में रहेंगे, और वहाँ से फिर तुर्की में बाद में अमेरिका इनको चेक करने के बाद अपने मुल्क में ले जाएगा। ये है जी अमेरिका का प्लान। तुर्की का मौक़िफ़ आ गया। तुर्की हुकूमत ने भी अफ़गानों को दोबारा आबाद करने के लिए तीसरे मुल्क को या किसी और मुल्क को इस्तेमाल करने के जो ऑप्शन है या अमेरिका का जो मंसूबा है उस पर तनकीद की है, और ने कहा इस कदम से ख़ित्ते में मुहाजिरीन का एक बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने अंकारा में जारी एक बयान में कहा कि हम अपने मुल्क से मशवरा किए बगैर अमेरिका के गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसले को कबूल नहीं करते। अच्छा, डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान 2 ममालिक हैं जो इस आबादकारी के मंसूबे में किरदार अदा कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया कि ईरान के साथ तो ताल्लुकात है ही नहीं, अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है अमेरिका। पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर आप अपनी राय ज़रूर बताएं। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ। पाकिस्तान ने अमेरिका को थोड़ा अर्सा पहले ये बताया कि हमारी मईशत इतनी मजबूत नहीं है। 1979 की वॉर के बाद से लेकर अब तक हमारे पास से बहुत सारे लाखों की तादाद में कई मिलियन अफ़गानी आए, हमने उनका बड़ा ख्याल रखा, बहुत सारे वापस भी चले गए, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, बल्कि दहशतगर्दी की एक पूरी जंग है जो हमें लड़नी पड़ी है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इतनी मजबूत नहीं है कि वो ज़्यादा मुहाजिरीन का बोझ उठा सके। अमेरिका की जानिब से अफ़गान मुहाजिरीन के लिए पाकिस्तानी सरहदें खोलने का मुतालबा दोनों ममालिक के दरमियान जो पहले से कशीदगी चल रही है उसमें मज़ीद इजाफे का बायस बन सकता है। पाकिस्तानी फ़ौज ने एक स्टेटमेंट दिया है और इस पर कहा कि अफ़गान सरहद पर बाढ़ ना लगी होती तो हालात आज काफ़ी मुख्तलिफ होते। ये 3 अगस्त को स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदगान को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तुरखम बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे लगी हुई बाढ़ का विज़िट करवाया गया और ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया गया। फ़ौज ने इस मौके पर यह बताया था कि 90% बाढ़ हम लगा चुके हैं, जबकि बाकी 10% पर इस साल के आखिर तक लग जाएगी। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस बाढ़ की मौजूदगी में अफ़गानिस्तान से शिद्दत पसंद पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। शिद्दत पसंदों के लिए मादी के ये रास्ते अब तकरीबन बंद हो चुके हैं।
हमारी जो सरहद है अफ़गानिस्तान के साथ वो 2611 किलोमीटर है। ये बहुत मुश्किल सरहद है, बर्फ़ानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं, बहुत अजीब किस्म की सरहद है। इसमें हर किस्म का एरिया आता है, डेजर्ट तक आते हैं। तो ये बलूचिस्तान से लेकर ये जाती है खैबर पख्तूनख्वा की बुलंदियों तक, गिलगित बल्तिस्तान तक। तो ये एक बड़ा मुश्किल एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान ने बाढ़ लगाई है। बहुत मुश्किल इलाका है, 10% रह गया है, इस साल के आखिर तक लग जाएगा। और जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो सरहदी इलाका है वो ज़्यादा मुश्किल है, और वो 1229 किलोमीटर लंबा है। टोटल 2611 किलोमीटर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ उनका बॉर्डर लगता है। अब पाकिस्तान ने सिर्फ बाढ़ नहीं लगा रहा, बाढ़ का ज़रा थोड़ा समझ लें। हमारी तरफ से जो बाढ़ है वो 11 फुट ऊंची है, और जो अफ़गानिस्तान की तरफ से ये बाढ़ है वो 13 फुट ऊंची है, यानी वहाँ से ज़्यादा मुश्किल बनाई गई है। हमने बाढ़ की 2 दीवारें हैं, जो तार लगी हुई है वो 2 दीवारों में है। हमारी वाली साइड से जो बाढ़ लगी है वो 11 फुट हमने रखी है, जो अफ़गानिस्तान वाली साइड से लगी है उसको हमने 13 फुट रखा है। और इन दोनों के बीच में खारदार तारें जो हैं उनसे इनको भरा गया है, लिहाजा इनको क्रॉस करना मुमकिन नहीं है। ख़ास तौर पे उस वक्त जब पाकिस्तान ने ख़ास डिज़ाइन बनाया है। वो डिज़ाइन ये है कि हर कुछ फासले के बाद इस डिज़ाइन में किला नुमा मोर्चे भी बनाए जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूर के बाद, और ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ से शिद्दत पसंद पाकिस्तान में दाखिल हो सकते थे या होते रहे हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज का पहरा भी होगा, और उसकी वजह से एक शिद्दत पसंदों को यहाँ आने में ना सिर्फ दुश्वारी होगी बल्कि उनके लिए मामला नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने एक इजलास तलब किया है हंगामी, जो कल होगा, और उसमें ख़ास तौर पे ये बात की जा रही है कि जो बड़े शहरों पे अचानक तालिबान ने अटैक कर दिया है और एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी है, खाना जंगी लग गई है, आम शहरी बहुत बड़ी तादाद में हलाक हो रहे हैं। इसके बाद क्या नताइज होंगे, मुहाजिरीन का क्या करना है, अफ़गान शहरियों को कैसे बचाना है, अमन के अमल को आगे कैसे बढ़ाना है। जबकि अमन अमल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि रूस ने मेज़बानी करनी है, ये जो दोहा में होगी कॉन्फ्रेंस, उसमें इसमें रूस ने पाकिस्तान को दावत दी है, अमेरिका को दी है और चाइना को दी है, और ख़ुद रशिया चौथा मुल्क है। भारत ने बड़ा ज़ोर लगाया, बड़ी कोशिश की कि भारत को रशिया दावत दे, लेकिन रशिया ने भारत को इन अमन मुज़ाकरात के अंदर नहीं बुलाया। और अफ़गानिस्तान के मामले के अंदर जो डायलॉग होने जा रहा है पाकिस्तान का, रशिया का, चाइना का और अमेरिका का, उसमें भारत को बिल्कुल मुंह नहीं लगाया गया। इससे एक और चीज़ पता चलती है कि रशिया समझ गया है कि भारत स्पॉइलर है और पाकिस्तान मददगार है। पाकिस्तान अमन लाना चाहता है, भारत हालात ख़राब करना चाहता है, लिहाजा भारत को उन्होंने बाहर रखा है, क्योंकि रशिया को भी इस बात का पता है कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो रशिया और चाइना को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मोईद यूसुफ ने एक और बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। मोईद यूसुफ का ये कहना है कि अशरफ गनी को राज़ी करना या मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर उससे मुतालबात मनवाना, ये अमेरिका की ज़िम्मेदारी है, हमारी नहीं है। अमेरिका लेकर आया ना उसको इक़्तिदार में, अमेरिका की कठपुतली गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी तो उठाए वो। तालिबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान ने इतनी ली है कि हम उनको मुज़ाकरात की टेबल पे लाएंगे। तालिबान के अमेरिका के साथ जब मुतालबात या मुज़ाकरात कामयाब हुए तो पाकिस्तान बीच में था। अशरफ गनी के साथ भी जब मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो पाकिस्तान ही बीच में होगा। लेकिन तालिबान को हम कायल कर सकते हैं उस सूरत में जब अशरफ गनी लचक दिखाए, और अशरफ गनी की लचक के पीछे अमेरिका होगा। ये जिम्मेदारी अमेरिका की है, ये अमेरिका को अदा करनी पड़ेगी। जबकि अमेरिका ने एक मरतबा फिर इस बात का एतराफ़ किया है कि अफ़गानिस्तान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। और ये वो बयान है जो इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, पिछले 20 साल से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब अमरीकी सफारत खाने ने 2 ट्वीट किए हैं, और उन ट्वीट्स के ऊपर तालिबान का रद्द-ए-अमल आया है। ये ट्वीट्स बड़े अजीब हैं। उसमें कह रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट से मालूम होता है कि तालिबान अफ़गान फ़ौजियों को वर्गला कर हथियार डालने पर आमादा करते हैं, और अफ़गान फ़ौजियों से ये भी वादा किया जाता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन रात की तारीकी में फ़ौजियों को गायब कर दिया जाता है, और उनकी बीवियों को तालिबान जंगजू ज़बरदस्ती अपने साथ शादियों पर मजबूर करते हैं। अगर ये सच है तो ये जंगी जुर्म हो सकता है। यानी एक अजीबोगरीब इल्ज़ाम लगा दिया। वो हथियार डाल रहे हैं, उनको ले जाके मार देते हैं रात को छुपा के, और उनकी बीवियों को ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं। ये एक बड़ा भोंडा
اور عجیب و غریب الزام ہے طالبان کے اوپر۔ دوسرا، بین الاقوامی قانون جنگی قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی یا قتل سے روکتا ہے۔ اگر طالبان واقعی چاہتے ہیں کہ ان کے وعدوں کو سنجیدگی سے لیا جائے تو ان کو یہ جرائم روکنے ہوں گے۔ برطانیہ اور امریکہ فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس طرح کے ایلیگیشنز ہیں جن کا انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن ایسی رپورٹیں ان کو مل رہی ہیں، یا اس قسم کی افواہیں یا اس طرح کی باتیں امریکہ تک پہنچ رہی ہیں۔ طالبان کا رد عمل اس پہ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ کیا کہ جناب سفیر، آپ 20 سال تک کابل انتظامیہ کے ساتھ کھڑے رہے لیکن ناکام رہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں اور نہ ہی آپ جھوٹے پروپیگنڈے کا حصہ بنیں۔ ہماری قوم جانتی ہے کہ آپ سچ نہیں کہہ رہے اور وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، آپ پر نہیں۔ ایک ناکام باپ کو اب بند کریں۔ یہ جی انہوں نے کہا ہے۔ اب میں آپ کو صرف ایک چیز اور بتا دوں کہ جو اہم ترین صحافی ہیں نا افغانستان کے، ان سے اگر آپ پوچھیں تو لشکر گاہ سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے، جس کے قابو لشکر گاہ کا علاقہ آ گیا۔ یہ ہیلمند صوبہ ہے، لشکر گاہ اس کا دارالحکومت ہے، جس کے قابو لشکر گاہ، اس کے قابو جو ہے وہ قندھار بھی اور ہرات بھی، اور پورا وہ ریجن جو ہے افغانستان کا ادھر والا جو ایران اور نیچے پاکستان کی طرف، اوپر ازبکستان اور ترکمانستان کی طرف لگتا ہے، وہ سارا طالبان کے قبضے میں چلا جائے گا اگر لشکر گاہ چلا گیا تو۔ لشکر گاہ کے بڑے حصے پہ طالبان قابض ہیں اور حکومتی فورسز پورا زور لگا رہے ہیں اس کو واپس لینے کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔